From a circular card sheet of radius 14 centimeters, two circles of radius 3.5 centimeters and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the figure of remaining sheet. आपको इसमें एक circular card sheet given है. Okay. Suppose this is a circular card sheet and out of this two circles and one rectangle are removed. इनको कट करके निकाल दिया गया. Okay. तो इस बिगर शीट के लिए भी आपको रेडियस गिवन है और ये स्मॉलर सर्कल्स का रेडियस और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर गिवन टू यू. ओके. First of all, we will find the area of this bigger circle because we have to remove these two and this rectangle out of the surface of this sheet. इस surface में से आपको ये deduct करने हैं, तो आप पहले पूरा एरिया फाइंड कर लो, फिर इन दोनों का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे बिगर एरिया में से, and then you will come to know how much is the remaining card sheet. So this is the card sheet that we are talking about. So first of all, we will find area of card sheet. And for this, you are given that radius is 14 centimeters. Radius is 14 centimeters. So area will be pi r square. That means pi r is 14 and 14. 7 2s are, this is 44 into 14, and when you multiply it with 616 centimeters square. This is the area of bigger circular card sheet. Now we will find the area of these two and this one. अगर मैं इसका वन सर्कल का एरिया फाइंड कर लूं स्मॉलर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये दोनों का एरिया मिल जाएगा. For smaller circles, we are given that radius is 3.5. So area of small circle is where radius is 3.5 centimeters. Area will be pi r square pi 22/7 into 3.5 into 3.5. Remove the decimals. This is 35/10, 35/10, 5 sevens are, 7 fives are, 5 twos are, and this is 77/2. This is the area for one circular cutout. Now we will find the area of two small circles, and for that we will multiply this area. जहां आपने एक स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड किया है, इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से and we will get the area for these two circles. That will be 2 times 77/2. 2 will be cancelled. This is 77 centimeters square. Let us find out area of this rectangle, and we have given that length of this rectangle is 3 and breadth is 1. So area of rectangle is equal to length into breadth 3 into 1, 3 centimeters square. अब जो कट आउट करने हैं ये दोनों आपको मिल चुके हैं, दोनों सर्कल्स के एरिया और रेक्टेंगल का. अब बिगर कार्ड शीट में से आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे एंड यू विल गेट हाउ मच इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ दिस कार्ड शीट व्हेन दीज आर taken out. Okay. So this is the last part of this question. Fifth part. Area of remaining
card sheet. That will be 616 minus 77 and 3. ये दोनों सर्कल्स और रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. minus 80. This is 536 centimeters square. This is your answer. I hope now it is clear to you. Let us move further for next question, and this is question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. एक सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हैं और इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ बनाया गया. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. अब आपको इसमें सिर्फ पाथ का एरिया पूछा है. ओके, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 13. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके अंदर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और इसके आसपास, इस फ्लावर बेड के आसपास एक पाथ बनाया गया. अगर एक सर्कुलर शेप है और उसके आसपास आप पाथ बनाओगे वो भी सर्कल शेप नहीं बनेगा. ठीक है, यहाँ एक आसपास एक इसके पाथ बना दिया गया. अब ये जो फ्लावर बेड है इसका डायमीटर गिवन है आपको. फ्लावर बेड का डायमीटर गिवन है. डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड and that is 66 meters. तो अगर आपको डायमीटर गिवन है, you can easily find out radius. Radius of flower bed will be 33. 66 by 2 that will be 33. अभी आपको इस इनर सर्कल के लिए रेडियस पता चल गया. What you have to find out, ये जो साइड पे पाथ बनाया गया है इसका एरिया क्या है. This is also circular in shape. Okay, तो अगर हम इस बिगर एरिया में से, बिगर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर डिडक्ट कर दें, ये पूरा माइनस कर दें, तो सिर्फ पाथ का एरिया रह जाएगा. ओके, आउटर सर्कल में से अगर हम इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें, ये पूरा सरफेस माइनस हो जाए, तो ओनली पाथ का एरिया रह जाएगा. सो सेम कंसेप्ट वी विल यूज हियर. हम एक बिगर जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इनर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो ओनली पाथ का एरिया मिल जाएगा. ओके, बट इसके लिए हमें दोनों सर्कल्स की रेडियस चाहिए. फ्लावर बेड का तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया. नाउ व्हाट अबाउट दिस आउटर सर्कल्स रेडियस. हमें ये गिवन है दैट दिस पाथ, ये जो पाथ है दिस इज 4 मीटर्स वाइड. ये 4 मीटर चौड़ा सब तरफ बना हुआ है. ठीक है, अगर इतना सा पोल है यहाँ से लेके इसकी बाउंड्री तक ये 33 है और इसके बाद ये जो पाथ है इसकी विड्थ 4 है, तो दैट मींस बिगर जो सर्कल है उसका रेडियस मिल जाएगा आपको. अगर आप इसके सेंटर से यहाँ तक चले जाओ तो ये 33 प्लस 4 है. दैट मींस बिगर सर्कल का रेडियस है 33 प्लस 4 37. सो सेकंड पार्ट, रेडियस of outer circle, that will be 33 plus 4 is equal to 37 meters. वो आपको मिल गया 37. अब आपके पास आउटर सर्कल का भी रेडियस है, इनर सर्कल का भी रेडियस है. जस्ट यू हैव टू फाइंड द एरियाज एंड देन सबट्रैक्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, area of outer circle. This is pi r square. Here pi की जो वैल्यू है that we have to use 3.14 into radius for bigger circle is 37 square, and when we multiply it, it is equal to 4298 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इतना आ जाएगा. डॉट
area of inner circle. Again because circular shape है तो formula same, but 3.14 हम पाई के लिए यूज करेंगे and radius is equal to 33 square. तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 into 33 into 3.14 and you get 3419.46. And now last part of the question, area of path. उसके लिए आउटर सर्कल से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए. That will be 4298.66 minus 3419.46, and when we subtract we get 879.20 centimeters square. So this much we have got for the area of path. I hope this question is